Good evening to all my dear students over there. Okay, I hope that you and your family is doing well in this pandemic. So hoping for all the best and all the positivity. Let's start with today's lecture. I am again here with your subject, that is next generation technologies. We were discussing some of the topics related to big data in the previous lecture. So those students who have not attended my lectures yet, please go through the previous lectures so that you will be familiar with the terms and terminologies we will be using in this lecture. Okay, so let's not waste the time and quickly start with a recap of the previous session. So in the previous session we discussed about what is big data. So data is huge, having large volume. Data is of various format. Data is not having any proper structure. It is unstructured because it contains a variety of the data. Then we discuss about the facts about big data. What are the facts? Okay, the data is huge. Again, the data comes in various sizes and shapes and formats. Data is generating at a very high speed, very high rate. ठीक है, within a minute tweets are generated, within a minute likes are generated. Now then उसके बाद the last topic was sources of big data, again from where that lots of and bundles of huge amount of data is generating. What are the main sources of that big data? In that we saw lots of example of Twitter, social media, then in communication over internet, then uses of internet, then again commercial use of internet. There were lots of example related to sources of big data. Then quickly we will go through the agenda of today's lecture, that is what we will be covering in this lecture is 3 V's of big data. I already told you 3 V's of big data, that is velocity, volume and variety. Then again usage of big data, where this data is being used. Okay, the data is huge, we know. Then how we can make the effective use of this big data. Then again the challenges in the big data. Okay, see, the every new technology also faces some challenges. How it is क्या बोलते tackled. So we will discuss in this challenges of big data. And then obviously every new innovations, every new technology, every new trend has some new tools and some new softwares and some new methods to be followed. Okay, so we'll see in the trends and technologies in big data. So quickly we will go through the first topic, that is 3 V's of big data. Again I'm saying very important regarding your exam point of view. It has been asked many times in the exam. 3 V's of big data. Okay, so very important question regarding your exam. Let us discuss 3 V's of big data. Again I am telling V, volume, velocity and variety. 3 V's of big data. So as you can see in the figure. Okay, so first we will discuss about the volume. So volume in big data means the size of data. Various factors contributing the size of the big data, that is business are growing very fast, transactions are generating within a minute, lots of transactions are doing, lots of devices are connecting to the internet. Okay, which is again adding to the volume, lots of transaction is going on. Here is an increased usage of the internet. Again we are having now all of us are having mobile data. Okay, so and there is an increase in the digitization of the content. This is very important because see in this COVID-19 also सारी चीज़ें जो डिजिटल हो रही हैं, लेक्चर्स ऑनलाइन लिए जा रहे हैं, रिकॉर्ड्स ऑनलाइन किए जा रहे हैं, एडमिशन ऑनलाइन हो रहा है, कंसल्टेशन विद द डॉक्टर्स भी ऑनलाइन हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है. कोई भी निकल के बाहर जाना नहीं चाह रहा है, तो चीज़ें कैसे होंगी. इवन बैंक से ट्रांजेक्शन वगैरह भी सब कुछ हो तो पहले ही ऑनलाइन हो चुका था. बट ये ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑनलाइन अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का भी आ रहा है. सो मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑनलाइन. सो द बर्डन ऑफ that is storage and then burden of processing on the CPU power and all that computational requirements is increasing day by day. So we have to take care of that. Okay, so that is again a volume of big data. Now see, you can see the digital universe in 2009 and 2020.
See the difference. Okay, it is just an image, but you can see the impact. It is growing by factor of 44 गुना ज़्यादा हो चुका है. ठीक है. So the huge volume of data is biggest challenge for the big data technology. Obviously उसका storage, उसका processing, उसका power need, computational power, वो सब कुछ जो है हमको वो है बहुत ही ध्यान से जो है वो हैंडल करना पड़ेगा. Next one is variety. Obviously I discussed earlier in the earlier lecture also, the data का structure is not fixed. Okay, that's why traditional DBMS can't hold and can't process this big data, because the format is unknown, because the format is not known until the data is stored. Okay, it can be image, it can be audio, it can be video, it can be medical file, it can be aerial images, it can be sensor data, meter reading, it can be anything. Okay, so the format is not known until the time of storage. And also new data formats are emerging day by day. So if the data format is unknown, so how can we put in this structured format? Okay, so data is unstructured, data comes into various format, so we have to look for some solutions for such databases which can easily occupy or easily accommodate these types of unstructured data also. Okay, so next is obviously velocity. Data is generating at a very high speed, at a very fast rate. Okay, so being a critical decision maker, you have to make quick decisions. Okay, especially because the data is moving very fast. And a very interesting example is like you have seen that today. Okay, I'm again using that example, TikTok versus YouTube. Carey Minati, we have heard that famous YouTuber. Okay, so we had heard that dispute between Carey Minati and the YouTubers Amir Siddiqui and all. So what Carey Minati's fan did, they just went there in the Play Store, and then they degraded that rating of that टिकटॉक. ओके, सो रातों रात वो क्या हो गया, टिकटॉक का रेटिंग घट के 1 पे आ गया. सो जब भी आप रियल डेटा इट मीन्स रियल डेटा ऑन द मूव. सो डेटा इन मोशन, मतलब डेटा चल रहा है तभी आपने एनालाइज कर लिया कि भाई टिकटॉक का रेटिंग इतना बुरी तरीके का घट रहा है. फैंस जो हैं, डाई हार्ड फैंस जो है कैरी मिनाटी के, वो कुछ भी करेंगे लेकिन टिकटॉक को जो है एकदम टिकटॉक की छवि ख़राब करके रखेंगे. तो फिर वहाँ पे एक क्विक डिसीजन लेने का वहाँ पे फैसला किया गूगल ने, और रातों रात जो है मिलियंस ऑफ ट्वीट्स डिलीट करके जो है वापस से जो है टिकटॉक को रेटिंग इंक्रीज कर दी. सी, so what the point in explaining this example is not I'm not Kerry's fan or I'm not Amir Siddiqui's fan. What the point in explaining this example is रियल टाइम डेटा को कैप्चर करना, उसको एनालाइज करना, उसके बेसिस पे क्विक डिसीजन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टॉक एक्सचेंज का आप देखते हो कितना डेटा फ्लक्चुएट होता रहता है. डेटा ऑन द मूव कंटिन्यूसली वो जो है वो रीडिंग्स दिखाते रहता है, शो करते रहता है. सो दैट इज कॉल्ड एज रियल टाइम डेटा, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. डेटा ऑन द मूव, जनरेटिंग एट अ वेरी हाई स्पीड. ठीक है, विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स जो है वो ट्वीट्स रीट्वीट्स हो जाते हैं. ठीक है, बाढ़ आ जाती है जो है सोशल मीडिया पे. सो दैट वी हैव टू कैप्चर वेरी फास्ट, दैट वी हैव टू एनालाइज के हो क्या रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग को डिसीजन निकालना है, डिसीजन लेना है. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट वेलोसिटी. Then there is again another V, that fourth V is not mentioned here, veracity. Okay, so next is usage of big data. That is again a very important and a very interesting as well as very easy topic for the exam point of view. Again, it is very easy where this big data is used, how can you use big data, what are the usage, what are the advantages. Again, visibility, the data is visible, data is accessible. Okay, you can access the data. Okay, next in next lectures and next chapters we will come to the topic that is sharding. Okay, that is division of the data. If the data is used, then storing on a one server will obviously increase the load on that server. Okay, so we will make the copy of the data and we will distribute among the many servers. So based on distribution and all, the data will be visible 24/7. We can access the data at any time. Okay, now then discover and analyze information. Again the same example I will give कि जैसे ही आपने देख लिया कि ट्रेंड कुछ और चल रहा है या कुछ और चल रहा है, डिमांड कुछ और है पब्लिक की, सो वहाँ पे हम लोग ने लाइव जो है फीडबैक लिया सारे इस कमर्शियल वेबसाइट्स का.
सारे उसका, सारे कस्टमर्स का क्या डिमांड है, कैसे है, फीडबैक क्या है किसी भी प्रोडक्ट का, तो हम लोग वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन की प्रोडक्ट आपका सेल किस उसमें जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ट्रेंड क्या है, ठीक है। उसके बाद आप उसके बेसिस पे जो है उसको या तो प्रोडक्ट को जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हो, या कुछ चेंजेस करने के बाद वापस से मार्केट में ला सकते हो। देन सेगमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेगमेंटेशन एंड कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो कस्टमर डिमांड करता है उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट टेलर्ड करते हैं। टेलर्ड करते हैं मतलब काट छांट करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। जो भी कस्टमर डिमांड करता है या जो भी फीडबैक रहता है उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज़ करते हैं, चेंजेस करते हैं। देन उसके बाद सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेगमेंटेशन का मतलब कस्टमर्स को पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से डिवाइड करना। अगर मुझे पता चल रहा है कि किसी एक एरिया में मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में है, ज़्यादा सेल हो रहा है, तो वहाँ पे मैं एक अपनी ब्रांच डाल सकती हूँ। और कहीं पर ऐसा हो रहा है कि जो जियोग्राफिकल कंडीशंस और एंड ऑल, वहाँ पे मेरा इतना प्रोडक्ट का डिमांड नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ से मैं जो है अपनी डिलीवरी सिस्टम को थोड़ा सा हटा सकती हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। ओके, ये सब करने के बाद हम लोग को क्या होता है, ऑब्वियसली हम लोग डिसाइड कर सकते हैं चीज़ों को कि कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट इनोवेशन। ऑब्वियसली अगर डेटा चेंज हो रहा है, उसका फॉर्मेट चेंज हो रहा है, और तेज़ी से जनरेट हो रहा है, नए नए फॉर्मेट्स निकल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो you have to innovate something, you have to renovate something, you have to change something to handle that, to incorporate that and to जो है process that data. Okay, so you have to make innovations, and there is a large scope for innovation in the field of big data. Okay, so quickly we will go through the next challenges of big data. See, हर टेक्नोलॉजी, हर अच्छी चीज़ या हर इनोवेशन, कोई भी कितना भी अच्छा हो, हमेशा उसको कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ जो है बैरियर्स जो है वो फेस करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली सी, बिग डेटा इज़ अ न्यू टेक्निक, बिग डेटा इज़ न्यू थिंग इन द मार्केट, सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज इन द पॉलिसीज, इन द प्रोसीजर्स। ओके, कि बिग डेटा क्या पॉलिसी क्या रखेंगे, प्रोसीजर क्या रखेंगे, किसको एक्सेस देना है, एक्सेस टू डेटा। सी, किसको एक्सेस देना है, हु इज़ ऑथेंटिकेट टू हैव द एक्सेस, हु इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड टू हैव द एक्सेस। ओके, एडमिन को कितना पावर देना है, कितनी नहीं देना, कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्यूरेसी, ये सब कैसे मेंटेन करनी है, स्केलेबल कैसे बनाना है उसको, ठीक है। बिकॉज स्केलेबल होगा डेटा आपका जो है, अगर स्केलेबल नहीं होगा सिस्टम तो आप ह्यूज डेटा को नहीं रख सकते, ठीक है। आपको सिस्टम को स्केलेबल करना होगा, बढ़ाना होगा, तभी हम जो इसको जो है सारी चीज़ें जो उसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। देन अगेन टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स based on that huge data, volume of data, you have to go through न्यूअर टेक्नोलॉजीज। लीगेसी सिस्टम विल नॉट वर्क, ठीक है। पुराना सिस्टम देखो लिखा हुआ है, लीगेसी सिस्टम विल नॉट वर्क, इनएडुकेट हो जाएगा लीगेसी सिस्टम। तो वहाँ पर आपको नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे हम अभी पढ़ने वाले हैं बिग डेटा में मोंगो डीबी, ठीक है, नई डेटाबेस है बिग डेटा को हैंडल करने के लिए। सो इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर वी विल हैव फीचर्स ऑफ मोंगो डीबी ऑल्सो। सो दीज वे द चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा। अगेन चैलेंज दैट इज लीगेसी सिस्टम एंड बिग डेटा। हमारा सिस्टम जो पुराना है, ट्रेडिशनल है, ठीक है, अगर हम लोग DBMS यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी हालत में वो जो है बिग डेटा को स्टोर नहीं कर सकेगा, बिकॉज उसका फॉर्मेट ही फिक्स नहीं है। और DBMS क्या करता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रहता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रहता है, स्ट्रक्चर ऑफ बिग डेटा। स्ट्रक्चर ऑफ बिग डेटा है या नोन है, हमको पता ही नहीं कि सामने वाला जो इमेज भेजेगा, कि ऑडियो भेजेगा, कि वीडियो भेजेगा, और वो कितनी बड़ी रहेगी। हो सकता है कभी वो बहुत बड़ी रहे, कभी वो बहुत छोटी रहे। तो एक रो में आपको बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करना होगा, दूसरे रो में बहुत कम डेटा स्टोर करना होगा। ऐसा तो होता नहीं है। DBMS में तो फिक्स रोज नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें आप हर किसी में नल नहीं डाल सकते, हर किसी में एम्प्टी नहीं रख सकते हैं। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ बिग डेटा एक बहुत प्रॉब्लम होगी जब आप लीगेसी सिस्टम के साथ काम करोगे। देन डेटा स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है। हमारे पास ह्यूज डेटा आ रहा है, पीटाबाइट में आ रहा है, टीराबाइट्स में आ रहा है, GBs और MBs में आ भी नहीं रहा है। तो वहाँ पर जो डेटा स्टोरेज, देन CPU प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, हाई स्पीड CPU और हाई स्पीड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, मल्टीपल प्रोसेसर्स लगेंगे। तो वहाँ पर जो है हम लोग का लीगेसी सिस्टम जो होगा वो काम नहीं करेगा, ठीक है। हमको कुछ ना कुछ इनोवेशन करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ नया लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, जिसके साथ हम लोग बिग डेटा के साथ काम कर सकें। सो दीज वेर दी चैलेंजेस इन द बिग डेटा। चैलेंजेस इन बिग डेटा पीछे 3 और एक ये लीगेसी सिस्टम एंड बिग डेटा, ठीक है। दीज वेर दी चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा। देन नेक्स्ट वी विल सी
बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो बिग डेटा जहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को न्यूज़ स्टोरेज लगेगा, अभी मैंने डिस्कस किया न्यूज़ स्टोरेज लगेगा, पुराना स्टोरेज काम नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत कम है, हम लोग पीटाबाइट्स में और टीराबाइट्स में डेटा आ रहा है, ठीक है, एमबीज में और जीबीज में तो आ ही नहीं रहा है। एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर लार्ज एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, बड़े डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने के लिए हमको नई टेक्नोलॉजी, नया सब कुछ लगेगा। देन पैरेलल प्रोसेसिंग, अगेन मैंने बोला सीपीयू कंप्यूटेशनल पावर बहुत हाई है वो लगेगी, ठीक है, सर्वर प्रोसेसिंग बहुत हाई होना चाहिए, सर्वर तो बहुत ही 24/7 सर्वर होता है, प्लस जो है उस पर आप ह्यूज डेटा स्टोर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसकी कंप्यूटेशनल पावर, उसकी सीपीयू पावर कितनी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देन क्लस्टरिंग, ओके, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है, आपका जो क्या बोलते हैं हम इंपॉर्टेंट डेटा है उसकी क्लस्टरिंग एक ही जगह पे, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया आपने कि आपका एक डेटा 5 डेटा 5 रोज़ कहीं और है और 5 रोज़ कहीं बहुत दूर पर है, तो बिग डेटा का पूरा जो है कंसेप्ट वो गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जब भी क्वेरी आप परफॉर्म करते हो तो सारी डेटा पे क्वेरी परफॉर्म होती है, तो सारी डेटा पे क्वेरी परफॉर्म करना, दो जगह से लेके आना और मर्ज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्लस्टरिंग आपको ध्यान से देना है कि जो इंपॉर्टेंट डेटा है, जो रिलेटेड डेटा है उसको एक जगह रखना है, जो थोड़ा अलग डेटा है उसको आप दूसरी जगह डिवाइड कर सकते हो। जो ये सब हम लोग कब पढ़ेंगे, हम लोग स्टार्टिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे, उसमें क्लस्टरिंग वगैरह आता है, ठीक है। देन अगेन लार्ज ग्रिड इन्वायरमेंट्स, देन हाई कनेक्टिविटी एंड हाई थ्रूपुट, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर ऐसा नहीं रहा, हाई थ्रूपुट का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस, स्पीड, ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं रही, अच्छी रही, स्पीड अच्छी नहीं रही, तो इतना बड़ा डेटा आप उसको स्कैन करना, उसको क्वेरी करना, उसको प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देन क्लाउड कंप्यूटिंग ने स्केल आउट आर्किटेक्चर, मैंने बोला आपको सिस्टम अपना स्केलेबल रखना होगा, बढ़ाने टाइम पे ज़रूरत पड़ने पे आप उसको बढ़ा सकते हो, ऐसा रखना है, ठीक है। So these were the big data technologies. These were the questions actually asked in the previous year question papers. Explain 3 V's of big data. Again, volume, velocity and variety. Explain the usage of big data. We have seen the last lots of usage of big data, decision making, then innovation, then accessibility and all. Explain challenges in big data. We have seen that storage processing होगी, then legacy system काम नहीं करेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा अननोन है तो वो प्रॉब्लम देगा, ठीक है। टेक्नोलॉजीज नई नई निकालनी पड़ेगी, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स चेंज करने पड़ेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करना है और किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है, वो सब भी आपका जो है चैलेंजेस हो जाएगा बिग डेटा में। नाइन द ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज इन बिग डेटा, क्या क्या टेक्नोलॉजीज सब क्या क्या ट्रेंड्स यूज़ हो रहे हैं अभी के बिग डेटा में, वो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सो द 3 important question, there are 3 important question actually, the last one is actually clubbed with any one of this questions, ठीक है। सो अलग से नहीं आता है, बट वो यूसेज एंड चैलेंजेस बहुत बार आया है। 3 वेज तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं बोल दूँगी कि अभी से आप IIMP लिख दो, IIMP पता है ना, वे वी